पिस्टल को मुंह में रख दिया और कभी रिवॉल्वर को मुंह में रख दिया। कई बार तो एक दूर सुनसान पहाड़ी पे ले गए कि बोले अब इसका एनकाउंटर कर देंगे। फादर की जो डेथ थी वो ईद के दिन हुई थी, रमज़ान की ईद की। खुशी नाम की चीज़ कभी नहीं रही हमारे घर में। दुनिया की ज़िंदगी में 20 साल गुजारा हूँ, जेल में 23 साल। You're watching Lost Lives on India Today. Our special series where over the years we've highlighted stories of people who were jailed without reason. The common thread that runs through all the stories is the fact that they were acquitted by the courts because charges against them couldn't be proven. Today we bring to you the story of two brothers from Gulbarga. One who spent 16 years behind bars and the other 23 years in jail. The orange of his henna-dyed hair and beard against a crisp white kurta pajama makes him appear older than his 43 years. Nisaruddin has aged faster than his older siblings. But that is perhaps the result of a lifetime spent locked inside a tiny prison cell. Sitting under a cobweb of wires on his terrace, surrounded by moss-covered houses in Mominpura in the old part of Gulbarga, Nisar soaks in the raindrops. His first since he was released from jail in May this year. The smell of rain, fresh air and freedom is not something that he takes for granted. It was the 15th of January 1994. Armed with textbooks, 19-year-old Nisar, who was pursuing a diploma in pharmacy, was on his way to college. His final year exams were due in 2 weeks' time. The hall ticket which would permit his entry into the examination centre was ready. ये 15 जनवरी 1994 की बात है, जब मैं रूटीन अपने कॉलेज में जा रहा था। फार्मेसी का छात्र था मैं, फाइनल ईयर का। तो अपने कॉलेज को जा रहा था रूटीन से, तो रास्ते में वो मेरा कॉलेज था ही उसी रास्ते पे, गुलबर्गा हैदराबाद वे पे। वो रास्ते में उन लोगों ने, पुलिस वालों ने जो ना अपनी जीप में मुझे धकेल लिया, उठा लिया, बल्कि मतलब किडनैप कर लिया और सीधा हैदराबाद के लिए लेके चले गए। वो असल में हैदराबाद पुलिस थी, सिविल में कपड़े में थे, पता नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिर वहाँ से मुझे ले गए और फिर वहाँ पे रखा कुछ दिन इलीगल। फिर टॉर्चर भी किया उन्होंने बहुत ज़्यादा, और टॉर्चर करने का असल मकसद था कि उन्होंने एक फैब्रिकेटेड कन्फेशन स्टेटमेंट तैयार कर रखा था वो बगैर नाम का, तो उस पर मेरे हस्ताक्षर लेने थे वो लोग। Nisar had no idea why he had been kidnapped or who his captors were. He had no family money, so the reason couldn't have been ransom. And then the torture started. मुझे तो बहुत किस्म के टॉर्चर किए गए थे। पहले तो मारते थे, पहले तलवों पे, पैर के निचले हिस्से पे, फिर वो पट्टे से और लकड़ी से बहुत ज़्यादा मारा। फिर उल्टा लटकाया गया मुझे, कुछ डंडा उंडा बांध के इस तरह से उल्टा लटकाया जाता था और बहुत देर तक लटकाया जाता था। फिर धमकाया भी जाता था। वो तेलुगु में बात करते थे कुछ वो लोग, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में। करंट भी लगाया करते थे, चेस्ट पे मेरे करंट लगाते थे। कई बार तो पिस्टल को मुंह में रख दिया और कभी रिवॉल्वर को मुंह में रख दिया। कई बार तो एक दूर सुनसान पहाड़ी पे ले गए कि बोले अब इसका एनकाउंटर कर देंगे। मतलब इस तरह से हर किस्म से, इस तरह से मुझे धमका सकते थे ताकि वो उनके मुताबिक मैं बोलने लग जाऊं या फिर उनके हिसाब से काम करने लग जाऊं। After 43 days of brutal torture, Nisar finally gave in. He signed on blank sheets of paper and on confessional statements placed before him. In doing so, Nisar admitted to placing bombs at the Humayun Nagar and Abid Nagar police stations in August 1993. He also admitted to assembling bombs, storing them in his house, and placing them inside a compartment of the AP Express on the first anniversary of the Babri Masjid demolition. In addition, he admitted that he was planning to place a bomb on the KK Express but was unable to do so because of ill health.
Back home, his family was desperately looking for him. शाम में जब काफ़ी देर तक घर नहीं लौटा तो काफ़ी परेशान हो गए हम लोग कि अभी तक कॉलेज से वापस के कैसे नहीं आया है। फिर पुलिस वालों के पास गए, कंप्लेन भी किए और वहाँ सिटिंग एमएलए थे खमरुल इस्लाम, उनके पास भी जाकर मतलब इंफॉर्मेशन उनको दिए कि भाई इस तरह से निसारुद्दीन हमारा भाई जो है वो घर में वापस नहीं लौटा है। 28 फरवरी 1994 को जब हमें पता चला कि निसारुद्दीन को हैदराबाद की एक कोर्ट में पेश करके उसको हैदराबाद पुलिस ने रिमांड पर लिया है किसी मामले में, तो उसके जब जाके हमें पता चला कि निसारुद्दीन को हैदराबाद पुलिस ने किसी मामले के लिए गिरफ़्तार किया है गुलबर्गा से। उसके बाद फिर हम पुलिस स्टेशन भी गए, वहाँ मालूमात किया तो उन्होंने कहा कि निसारुद्दीन ने मतलब बहुत सारे जुर्म का इकबाल किया है, लिहाजा जो है उसको हमने गिरफ़्तार किया है बहुत सारे मामलों में। फिर हम उससे जेल में मुलाकात की, हम उससे बातचीत की तो पता चला कि मतलब उसको बहुत सारे ने केसेस में गिरफ़्तार करके इसको दूसरे लोगों के साथ उसको फंसाया है। Nisar's arrest was the beginning of a long ordeal for his entire family. His father and brother ran from pillar to post trying to prove his innocence. But there was more trouble lurking in the shadows. मेरे फादर KSRTC में यहाँ पे जो कर्नाटक की जो RTC है उसके अंदर कंडक्टर थे। वो एक ही ज़रिए मार्च थे और वो मेरे पकड़े जाने के बाद वो इतना ज़्यादा अपसेट हुए, वो तो नौकरी वोकरी तो चली गई, छोड़ छाड़ दिए। तो सब जो थे, बड़े भाई भी सिविल इंजीनियरिंग किए हुए थे, तो वो भी अपना काम वगैरह छोड़ के कहीं काम जॉब करते थे वो। तो वो भी और वालिद साहब मेरे दोनों मेरे पीछे भाग दौड़ करने लगे। वहाँ पेशी में भी आया करते थे और घुमा फिरा करते थे। अब पता नहीं क्या हुआ, पुलिस वालों को क्या समझ में आया। हालांकि वहाँ के केसेस से मुझे बेल हो गई थी जल्दी। ये जो एफ़र्ट्स थे घर वालों के, जैसे भाई की कोशिश और वालिद साहब की कोशिश की वजह से मुझे बेल भी हो गई वहाँ के हैदराबाद के केसेस में, शुरू में 2-3 महीने के अंदर ही। तो उसी दौरान फिर भाई को उठा लिया उन्होंने। जब बेल हो गई थी उसी के दौरान भाई को भी उठा लिया और उन्हें भी बुक कर दिया। In what came as a deadly blow to Nisar and his family, his brother Zahir, who was leading the battle to get justice for him, was also arrested by the Hyderabad police. मुझे हैदराबाद ही से नामपल्ली कोर्ट में जब मैं भाई के लिए गया था तो कोर्ट से वापसी में मुझे पकड़ लिया था इन्होंने। लेकिन इन्होंने मुझे गिरफ़्तार किया, तकरीबन मुझे भी जो है ना 11 या 12 दिन तक मुझे भी इलीगल रखा, किसी कोर्ट में पेश नहीं किया। और उन्होंने कहा कि तुम जो है मतलब तुम भी तुम्हारे भाई के साथ जो है बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व हो और तुम बॉम्बे के डॉक्टर जलीस अंसारी के साथ भी इन्वॉल्व हो। What followed was an eerie replay of events. Like Nisar, Zahir was illegally detained and subjected to unimaginable brutality by the police. जब जज के सामने हम आपको पेश करेंगे तो जज के सामने कह देना कि हमने ये काम किए हैं तो तुम्हें जल्द से जल्द जो है मतलब हम बेल के लिए भी उनके रिकमेंड कर देंगे या जुडिशियल करवा देंगे तुम्हारा। तो जब हम इनकार करते थे तो वो फिर रात में सोने नहीं देते थे। कैसे नहीं सोने? सोने मतलब हम सोना चाहते थे, नींद आती थी तो आके जगा देते थे कि भाई उठो, साहब आए हैं, साहब से बात करना है तुम्हें, तो ये साहब आए हैं, फलां साहब से बात करना है। तो ये टॉर्चर सबसे ज़्यादा होता था और फिज़िकली टॉर्चर भी करते थे। ये ना उल्टा लटका के जो है ये पैरों पे तलवों पे जो है मतलब वो रबर का पट्टा होता है उससे मारते थे, जो उसकी तकलीफ़ जो है ना सर में महसूस होती थी। इस तरह से मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर हमारा मतलब शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा हुआ। बाद में धीरे धीरे मतलब वो इस वजह से नहीं हुआ कि जैसे उनके डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर वगैरह हो गए तब इन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट ही के ज़रिए से फिर रिमांड लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको By making him sign on fabricated confessional statements, the police in a sense made Zahir too sign off his life. With his signature on the dotted line, Zahir admitted to assembling and planting bombs at the Humayun Nagar and Abid Nagar police stations in August 1993 and at the Sikandrabad Railway Complex and Medina Education Centre in Nampalli in September the same year. In addition, he also admitted to assembling and planting a bomb on the AP Express on the first anniversary of the Babri Masjid demolition. Armed with their confessional statements, the Hyderabad police booked the two brothers under Tada and threw them behind bars. As different states had registered cases in connection with the 1993 serial train blasts,
the investigation was handed over to the CBI, which charge-sheeted all the accused, including Nisar and Zahir. On the 21st of May 1996, almost 4 years after their arrest, a Hyderabad Metropolitan Court revoked the provisions of TADA from the case. The Andhra government challenged the order before the Supreme Court, which in turn sent a show-cause notice to the Hyderabad Police Commissioner for casually invoking the charge. The Andhra government withdrew its appeal in 2001. Despite a positive order from the Supreme Court, Nisar and Zahir's ordeal was far from over. He would have some scathing observations for the... Ignoring the Hyderabad court's order discharging TADA and the Apex Court's subsequent observation, the Ajmer TADA court in 2004 convicted 15 people in the case, including Nisar and Zahir, and sentenced them to life imprisonment. There seems to have been an error committed by the TADA court inasmuch as there was clearly an argument taken before them that because in 1996 itself TADA had been revoked from the matter in which the confession had been taken and therefore the confession was clearly inadmissible, that argument was not really dealt with by the TADA court. And if that error had been corrected at that stage itself, certainly about 13 years of incarcerament of these 4 individuals would have been avoided. 23 years, 276 months, 8,400 days wasted behind bars. Labelled as terrorists and sentenced to a lifetime in jail, Nisar and Zahir were staring at endless misery. Life for them became a nightmare, one that seemed impossible to wake up from. Inside the prison cell, Nisar spent his days reading. Come night time, he struggled to sleep. एक किस्म का डर लगता था कि हो सकता है रात में कोई दिमाग में कोई बात नहीं आ जावे सोने से पहले। अगर कोई बात घर के तरफ की या दोस्तों की या पुरानी बातें कुछ याद आती थी तो फिर पूरी वो रात जाग के निकालनी पड़ती थी। ज़्यादा करके सहारा तो किताबें रही हैं। Cut away from the outside world and separated from his loved ones, Nisar tried his best to remain in touch with his family. He exchanged letters with them, letters that conveyed nothing of his suffering and told him nothing of their misery. लेटर में सारी झूठी खबरें होती थी कि मैं खैरियत से हूँ, मेरी तबीयत ठीक है और तेरे अब्बू भी ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, सब पढ़ने जा रहे हैं और हर चीज़ मतलब घर सही से चल रहा है। मतलब यूँ समझो वो एक झूठा लेटर ही होता था। It is only now, after his release, that Nisar is able to realize the extent of trauma that his family faced. With 2 sons accused of waging a war against the country and thrown behind bars, they had to carry the shame of being a family of terrorists. They found themselves isolated and the stigma took a toll on their health. वालिद साहब को उधर परेशान रहे, फिर उनको कई किस्म की मतलब बीमारी हो गई और फिर पीछे माँ की भी तबीयतें बहुत ख़राब हो गई। ज़रिया माश कोई था नहीं और रिश्तेदार भी मतलब जैसे कटने लग गए। तो उस टाइम में माहौल ऐसा था कि मतलब किसी को पकड़ के कभी भी टाडा में बुक किया जा सकता था। तो अब जो दुनिया जुड़ी हुई थी वो भी कटने लग गई। फिर एक मुसीबत मेरी वाली आ गई, फिर नौकरी वगैरह ज़रिया माश का सिस्टम भी ख़त्म हो गया। तो एक साथ कई मुसीबतें गिर गई थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब जब छूट के आया अभी मैं तो जेल में था ठीक है, लेकिन मेरे से ज़्यादा परेशान तो शायद घर वाले। Life for Nisar and Zahir's family had become an ordeal. Their father fought a lonely battle to get justice for his 2 sons. He received little or no help from friends and relatives who thought it was best to stay away. Nisar and Zahir's conviction by the Ajmer TADA court in 2004 came as a huge setback for their father, who after all these years was beginning to lose hope. वो कंटिन्यूसली अपना फॉलोअप करते थे, हैदराबाद वगैरह आते थे और अजमेर भी आए। वो इतनी दूर था, काफ़ी 1700 किलोमीटर्स पड़ता है हमारे गुलबर्गा से वहाँ अजमेर। तो लेकिन 2006 में जब 2004 में मतलब हमारे अगेंस्ट में फ़ैसला हो गया और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स मेरे शुरू हो गए, तो उसके बाद से वो काफ़ी अपसेट हो गए। तो मेरे फादर की जो डेथ थी वो ईद के दिन हुई थी, रमज़ान की ईद के दिन। तो रमज़ान की जो ईद है उन्हें खुशी नाम की चीज़ कभी नहीं रही हमारे घर में। तो इंशाल्लाह इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आ चुका है अभी निसार, तो इस साल का रमज़ान हम साथ में बिताएं और 23-24 साल के बाद की जो हमारी ईद रहेगी वो अब शायद वो ईद कहना लायक रहेगी हमारे घर।
घर आए, फिर वहाँ मिल गई। अलबत्ता मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि मतलब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मुझे बहुत चाहते थे, हम तमाम बच्चों में मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे वो। इतने बड़े बड़े लॉस तो हुए हैं जिसको मैं बता ही नहीं सकता। Taking long strides as if eager to meet his father, Nisar brings us to his resting place next door. New headstones remind him of the people whose companionship he missed out on while he was lodged behind bars. His father's is an unmarked grave. Standing there on a rainy morning, Nisar mourns the years gone by and losses irreplaceable, irreversible. जो छोटी बहन है मेरी, तो उसको मैं 12 साल की छोड़ कर गया था। अब उसकी बेटी है 12 साल की जब मैं वापस आया था। तो अब जो नए बच्चों को तो मेरा इंट्रोडक्शन कराया गया कि ये तुम्हारे मामा है, जो बोला करते थे हम वैसा है, और मुझे भी उनका इंट्रोडक्शन कराया गया। और ज़्यादा करके गुजर गए, नाना नानी गुजर गए, दादा दादी गुजर गए, चाचाएँ कई गुजर गए, खालो खाला से कई लोग मतलब ख़ानदान के गुजर गए। कुछ दोस्त भी मेरे एक्सीडेंट में किसी तरह वो इंतकाल हो गया उन लोग का। Back in jail, Zahir developed some serious health complications. He was diagnosed with cancer. His condition rapidly worsened because of lack of proper medical care. जो सांस की प्रॉब्लम थी वो सांस की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो बल्कि वो कार्सिनोमा में चेंज हो रही थी। मुझे एक लेसन हो गया था यहाँ पे, लेकिन निम्स के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने जो है मेरा ट्रीटमेंट करने से इनकार कर दिया था। ह्यूमन राइट्स में मामला जाने के बाद जो है ह्यूमन राइट्स से एक नोटिस जारी होगा धर्मशक्ति के खिलाफ, यानी हम एक्शन लेंगे अगर तुम इस शख्स का ट्रीटमेंट नहीं करोगे। तो बाज़ाब्ता तो मेरे पास उसका लेटर भी है। तो उस लेटर को से डर के जो है फिर धर्मशक्ति ने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। Zahir fought a two-pronged battle after being released on bail in 2008. He fought against cancer and to get justice for his brother Nisar, who was still languishing behind bars. Finally, on the 11th of June this year, 23 years after his arrest, the Supreme Court acquitted Nisar along with two others, set aside their life sentence and ordered their immediate release. It was freedom at last. जब उसको रिलीज़ किया गया तो कुछ अगर हम नहीं होते कुछ पल के लिए निसार के सामने वहाँ पर, तो शायद वो वापस पलट के जो है मतलब वो दीवार के सहारे खड़े हो जाता। लेकिन हमें देखने के बाद थोड़ा सा उसको ये हुआ और कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको। ट्रैफिक जो थी जयपुर जेल के जो सेंट्रल जेल के सामने जो मेन रोड पे जेल है वो, तो फिर हम ले आए उसको। ने एडजस्ट होने के लिए काफ़ी दुश्वारी हुई शुरू के दिनों में उसको। Coming up next, the road to freedom and the search for a new life. Two brothers, Zahir and Nisar, were picked up, slapped with tada and thrown behind bars. They were acquitted by the country's top court after 23 long years. Zahir was granted bail after 16 years because he was diagnosed with cancer. When Nisar walked out almost quarter of a century later, the world as he knew it had changed forever. A stranger in his own city, Nisar can barely recognize the neighborhood where he spent the first 19 years of his life. As he takes a stroll around Mominpura, he tries to look for old landmarks. But everywhere he looks, there are new houses, new roads, new shops, new faces. मुझे मेरे शहर में जो है ना, मुझे पूछना पड़ता है अजनबियों की तरह, तो उनको थोड़ा अजीब सा लगता है। दोस्त आगे सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो बोले पहचाना, बोले नहीं पहचाना। ऐसे ही हो रहा है। जो एकदम मतलब बचपन के साथी दोस्त एकदम छोटे से, तो वो लोग को भी नहीं पहचान पाता हूँ, क्योंकि चेहरे बदल गए, इलाका बदल गया, इलाकों के नाम भूल गया पूरे में। A visit to his school brings back fond memories. This is the place where Nisar first made friends. A place where he dreamt about building a comfortable life for himself and his family. The school has now expanded. New blocks have come up. But Nisar's dreams remain unfulfilled. ये ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करके कोई जॉब कर लूँगा या फिर गल्फ़ वगैरह में जा कर के घर को बचाऊँ, घर वालों को मतलब मददगार बनूँगा। अब वो ज़िंदगी का वो वक्त, तो वो सपने तो शायद ही पूरे कर पाऊँगा मैं। और अब जो दुनिया चल रही है उसमें कोशिश करूँगा अपने आप को भी प्रूफ करने की। He shows his old certificates from a thin pile of documents. Class 10 and 12 mark sheets, the result of his first year diploma exam and a certificate from a general knowledge test.
This is all that Nisar has to prove that he had potential. जिस दौर में मुझे उठाया गया था उस वक्त मोबाइल लॉन्च नहीं हुआ था इंडिया में, तो अब मैं बाहर निकला तो सब लगता है मोबाइल के बगैर कोई रहता ही नहीं है। आदमी के पास पैसा कोई चीज़ नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन मोबाइल ज़रूर रहता है, मैं देखा हूँ। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मतलब जब ना मैं मोबाइल को सही से हैंडल करना भी नहीं जानता, तो जो घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, भतीजे भतीजियाँ भांजियाँ वगैरह, वो लोग सिखाते हैं मुझे कि कैसे क्या मतलब मोबाइल को ऑपरेट किया जाए। और हंसते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हंसते हैं कि मतलब कि इतनी छोटी बात उनको सिखानी पड़ रही है। Even though he's a free man now, Nisar hasn't been able to forget the ordeal and suffering of his fellow prison mates. He says he can't understand why the world or the judicial system refuses to give even the guilty a chance to reform themselves. जो नाजायज़ फंसे हैं, चलो ठीक है, मेरा वक्त तो बर्बाद हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई और इस तरह किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो। लेकिन जो जेल को सुधार घर जो बनाया जाता है, सुधार कर जो बोला जाता है ना, तो उसके ये मेरा कहना ये मतलब ये है कि बंदे अगर सुधर रहे हैं तो उनको कंसिडर करना चाहिए। ये नहीं कि ज़िंदगी भर के लिए जैसे कोई जानवर स्लॉटर हाउस में गया तो बस वो कट के ही निकलेगा। He is ready for a second shot at life, but he needs help from the state. अब गलती भी मेरी नहीं थी, गलती जिनकी थी, उनसे क्या करना है, उनको केस चलाना है नहीं चलाना है वो गवर्नमेंट जाने। मेरे पास ना उतना वक्त है, ना उतना मेरे पास अब कोई चारा बचा है। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक बंदा 30 साल तक किसी की गलती से, प्रशासन की गलती से अगर रहा है, तो उसके लिए कोई कंपनसेशन का माकूल इंतजाम होना चाहिए, ताकि फिर वो समाज में वापस अपने साथ जुड़े रहे। तो एक हिसाब से एक धब्बा था है, एक देश पे एक धब्बा सा है कि मतलब इस देश के मतलब एक इंसान को मतलब 23 साल तक बेगुनाह फंसाया जा सकता है। They may have been acquitted of all charges, but who will take responsibility for the days, months and years spent behind bars? What happened to Nisar and Zahir is not a one-off case. Racial and religious profiling is a reality of the modern world, a reality that we as a society refuse to acknowledge and accept.